Good morning, dear students. How are you? Hope you are fit and fine. Now, first of all, we will revise our lesson number 2 and we will do question answers of lesson 2. First of all, watch this video. Input and output devices. Hey Beth, what are you doing? I'm doing my homework. Can I be of any help to you? Yes, you can help me if you know about computers. I can help you because computer science is one of my favorite subjects. Really? Candice, what are the input and output devices of a computer? I think what is outside the computer is the output of a computer, and what is present inside is called its input. No, Beth, that's not right. Let us take a look at my father's computer and I will explain the input and output devices to you. This is my father's laptop. It has a touch screen. The touch screen is an input device. When you touch any file on the screen, the computer responds to your touch by opening the file. So, input devices send data to a computer and the computer works accordingly. Similarly, a scanner is also an input device because it is used to feed printed text or pictures into a computer. The scanned document is displayed on the monitor. Okay, so input devices are those which are used to feed the information into a computer. For example, a keyboard is an input device because it is used to feed the words and numbers into a computer. Very good, Beth. Now you know what input devices are. There are some other input devices as well. This is a graphic tablet and it is used to draw on computers. Webcams, microphones, digital cameras, joysticks are some other examples. Beth, do you know what is this? This is a barcode scanner and it is used in supermarkets. Yes, you're right. This is also an input device because it reads the printed barcode on the product and tells the computer about it. In return, the computer shows the price of that product. Will you tell me about the output devices? Sure, Beth. These speakers are an example of an output device. When you select a song on the computer as input, the sound produced by the speakers of a computer is the output. Is the printer also an output device? When we input data into the computer, it prints the text or pictures on the paper as the output. You're absolutely correct. Plotters and projectors are some other output devices. Thank you, Candice. This was really helpful. You're welcome, Beth. Now we will do B part of chapter 2 exercise. Chapter 2 B part. Answer the following questions. बेटा हमें क्वेश्चंस के आंसर करने फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बारकोड रीडर. इसका क्या मीनिंग है? हमें ये बताना है कि बारकोड रीडर क्या होता है. आंसर इज बारकोड रीडर इज अ हैंड हेल्ड स्कैनर. बेटा ये एक छोटा सा स्कैनर होता है जिसको हम अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं, इसीलिए इसको हैंड हेल्ड बोला गया है. It scans the barcodes using light beam and display the information on monitor. ये क्या करता है? ये barcodes को रीड करता है. किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है? लाइट बीम टेक्नोलॉजी का यूज करके ये barcodes को रीड करता है और फिर उसको कहाँ डिस्प्ले करता है? मॉनिटर पर. क्लियर? सो आंसर इज barcode reader is a handheld scanner. It scans the barcodes using light beams and displays the information on
में जो मैग्नेटिक कार्ड रीडर है उसका यूज हम मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स को यूज करने के लिए करते हैं, वेयर एज स्मार्ट कार्ड रीडर इज यूज टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइनी चिप्स, जबकि जो स्मार्ट कार्ड है उसका यूज टाइनी चिप्स को रीड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे मोबाइल में होता है मेमोरी कार्ड दैट इज वेरी स्मॉल, तो उसको रीड करने के लिए हम स्मार्ट कार्ड रीडर का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइस। बेटा यहाँ पर हमें बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज बताना है कि हम यूज किस लिए करते हैं इसका। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन्स आइडेंटिटी बेस्ड ऑन सम यूनिक फीचर्स। बेटा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी को जो कि बिल्कुल यूनिक होती है। जैसे कि आपके पापा मोबाइल में फिंगरप्रिंट का लॉक लगाते हैं तो वो लॉक तभी ओपन होता है जब उनकी फिंगर वहाँ पर वो लगा प्रिंट देते हैं उसका, तभी वो आपकी जो मोबाइल है वो ऑन हो पाता है। तो इसका मतलब उनका जो फिंगरप्रिंट है दैट इज यूनिक फॉर दैट मोबाइल। ठीक है, सिमिलरली वी कैन गिव facial expression also. So the answer of third question is it is used to identify a person's identity based on some unique features like fingerprints, facial expressions, etc. Now fifth question is define the term plotter, write its types. बेटा इस क्वेश्चन में हमें प्लॉटर के बारे में बताना है कि प्लॉटर क्या होता है और ये क्या करता है, एंड उसकी टाइप्स लिखनी है कि कितने टाइप्स के प्लॉटर्स होते हैं। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। इट इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन वेरी लार्ज शीट्स। बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर जब हमें प्रिंट करना होता है देन वी यूज प्लॉटर। तो प्लॉटर किस काम आता है? बड़ी बड़ी शीट्स के ऊपर प्रिंट करने के लिए। There are two types of plotters. हमारे पास two types के plotters हैं। Number one drum plotter and second is flat bed plotter. First plotter कौन सा है? Drum plotter and second is flat bed plotter. Now we will learn practically how we can make changes in power saving modes. First of all, open the control panel. In control panel, click on hardware and sound option. Control panel के अंदर आप hardware and sound option पर click करेंगे. Now click on power options. Click on power options. यहाँ पर आपको settings change करनी है ना, इसलिए power options पर हम click करेंगे. नाउ देखिए जो बैलेंस्ड है इसको पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन जो हैं पहले से इसमें गिवन है, बट नाउ वी वांट टू चेंज द सेटिंग्स, सो वी विल क्लिक ऑन चेंज प्लान सेटिंग्स। अब हमें सेटिंग्स को चेंज करना है, तो हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए चेंज प्लान सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। चेंज plan settings. Now turn off the display. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टाइम चूज करना है कि कितने टाइम के बाद जो हमारा डिस्प्ले है, मॉनिटर है, वो टर्न ऑफ हो जाए। यू हैव टू सिलेक्ट द टाइम फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट इज पुट द कंप्यूटर टू स्लीप। कितने मिनट के बाद हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाए। You have to choose time from here and then click on save changes. Click on save changes. Save changes पर क्लिक करने से हमने जो चेंजेस किए हैं वो कंप्यूटर में सेव हो जाएंगे। Our next topic is installing and uninstalling an application. Just like in your mobile phones, you download
the different apps from the Google Play Store. When you download the apps, that process is called installing. And when you remove the apps from your mobile phone, that process is called uninstalling. Similarly, in the computers, if we want to work, we need to install some applications. कंप्यूटर, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोग्राम को आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आप उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम मीन्स टू प्लेस इट ऑन अ कंप्यूटर्स मेमोरी टू मेक इट रेडी फॉर यूज़. बेटा, जब हम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो कहाँ पर प्लेस्ड होती है? कंप्यूटर मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है और वो उसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन इंस्टॉल एन एप्लीकेशन थ्रू अ CD, DVD, USB और द इंटरनेट. अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है कंप्यूटर में तो आप कैसे कर सकते हैं? आप CD की हेल्प से कर सकते हैं, DVD की हेल्प से कर सकते हैं, USB पेन ड्राइव को बोलते हैं, आप पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, और you can install any application from the internet. Installing from an online store, that means from the internet. Installing a program from an online store is less expensive as well as quick. बेटा, जब हम इंटरनेट से किसी भी प्रोग्राम की इंस्टॉलिंग करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाती है और वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती. समटाइम्स यू हैव सीन कि कुछ गेम्स बिल्कुल फ्री होती हैं, है ना? आप करते हो ना इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर से. काफ़ी गेम्स होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो बिल्कुल टोटली फ्री होती हैं इंटरनेट पर. ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने कंप्यूटर में भी ऑनलाइन कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं. द लिंक्स टू डाउनलोड एन एप्लीकेशन आर प्रोवाइडेड ऑन अ वेबसाइट. बेटा, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए उसके लिंक्स जो हैं वो किसी भी वेबसाइट पर गिवन होते हैं. यू हैव टू डबल क्लिक ऑन इट टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसेस. आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उस पर डबल क्लिक करना है, आपका डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. इंस्टॉलिंग यूजिंग CD और DVD. When you insert a CD or a DVD of an application to be installed, an install routine automatically launches on the computer. बेटा, जब भी हम कोई CD या DVD अपने कंप्यूटर में डालते हैं, अपने CPU में जो हमारे पास DVD ड्राइव होता है उसमें डालते हैं किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, तो जैसे ही हम वो CD और DVD डालते हैं तो हमारा जो विंडो है जहाँ पर वो प्रोग्राम दिया हुआ है जो हमने इंस्टॉल करना है वो ऑटोमेटिकली ही ओपन हो जाता है. इन केस द इंस्टॉलर डज नॉट ऑटोमेटिकली लॉन्च, अगर वो ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता, देन ओपन CD, DVD इन द कंप्यूटर फोल्डर. बेटा, आप कंप्यूटर ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर आप CD और DVD को ओपन कीजिए एंड फाइंड द सेटअप फाइल. वहाँ पर आपको एक सेटअप फाइल मिलेगी. क्लिक ऑन द सेटअप फाइल. आप अपनी सेटअप फाइल पर क्लिक कर दीजिए. इट बिगिंस द इंस्टॉलेशन प्रोसेस. जैसे ही आप सेटअप फाइल पर क्लिक करेंगे आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी. अनइंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन, दैट मीन्स टू रिमूव एन एप्लीकेशन फ्रॉम आवर कंप्यूटर सिस्टम. जैसा कि मोबाइल्स में आप गेम्स को अनइंस्टॉल करते हैं, रिमूव करते हैं अपने मोबाइल में से, उसी तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में से अनइंस्टॉल कर सकते हैं. अनइंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन. रिमूविंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अनइंस्टॉलिंग. जब भी हम कोई प्रोग्राम कंप्यूटर से रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अनइंस्टॉलिंग. टू अनइंस्टॉल एनी एप्लीकेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स. अगर हमें किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे.
फर्स्ट इज सिलेक्ट प्रोग्राम्स फ्रॉम कंट्रोल पैनल विंडो। देखिए ये हमारी कंट्रोल पैनल विंडो है, इसमें आप प्रोग्राम्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन। उसके बाद बेटा आप प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट द प्रोग्राम दैट यू वांट टू अनइंस्टॉल। उसके बाद बेटा आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। अब आप वो प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे जिसको आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन अनइंस्टॉल बटन। आप अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे 4th नंबर पर। क्लियर? आफ्टर सिलेक्टिंग द एप्लीकेशन you will click on uninstall button. Now we will learn how we can uninstall a program from our computer system. बेटा अब हम ये देखेंगे कि हम कंप्यूटर में से कैसे किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। First of all, you will open control panel. Then click on programs option. हमें प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है, so we will click on programs option. Now here 2 options are given. You will click on programs and features. Programs and features option पर क्लिक करेंगे। Now select the program that you want to uninstall from your computer. जो भी प्रोग्राम आपको अनइंस्टॉल करना है आप उसको चूज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स गिवन हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं। अब हम वो प्रोग्राम चूज़ करेंगे जिसको हमें अनइंस्टॉल करना है। यस, नाउ क्लिक ऑन अनइंस्टॉल बटन। अब हम अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हमारा प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो रहा है। यस, नाउ प्रोग्राम हैज़ बीन अनइंस्टॉल्ड फ्रॉम आवर कंप्यूटर सिस्टम। नाउ प्रैक्टिकल वर्क, मेक अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल एप्स बटन, देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यस, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। Yes. First of all, we will set the page margin, increase the font size so that it can be visible to you. चलिए, now we will insert the table. अब हम टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल क्या होता है? A combination of rows and column. Click on Insert tab. Here is an option given Table. टेबल का ऑप्शन गिवन है। देखिए इसके एरो पर क्लिक करेंगे, डाउन एरो पर। क्लिक ऑन डाउन एरो। यस, नाउ सिलेक्ट द नंबर ऑफ रोज। ऊपर से नीचे की तरफ आप रोज सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने 5 रोज सिलेक्ट कर ली एंड 2 कॉलम्स। लेफ्ट टू राइट कॉलम एंड अप टू डाउन रोज। इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया इसको। नाउ वी विल मेक अ टेबल ऑफ
generations of computer that we have done in chapter 1. Generations and technology used. टेक्नोलॉजी यूज्ड, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी जनरेशन्स में, डिफरेंट जनरेशन्स में, आज उसका हम एक टेबल क्रिएट करेंगे. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, याद कीजिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी? यस, वैक्यूम ट्यूब्स. स्पेलिंग रॉन्ग हो गए, इसको ठीक करेंगे. यस, ट्यूब्स, TUBES. नेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए हम टैब की प्रेस करेंगे. प्रेस द टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड. सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ? ट्रांजिस्टर्स. Now tab key, press tab key. Yes. Third generation, press tab key. Integrated circuits. थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था. यस, नाउ प्रेस टैब की. फोर्थ जनरेशन, in fourth generation microprocessor is used. Microprocessor, CESSOR, microprocessor. अब हमारे पास नेक्स्ट रो नहीं है, नेक्स्ट रो लाने के लिए हम टैब की प्रेस करेंगे. प्रेस द टैब की, we will get a extra row. Fifth generation. In fifth generation computers, artificial intelligence is used. Yes beta, try it at home if you have computer. Okay, ये देखिए हमने सारी generations की टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ हुई है वो हमने टाइप कर दी है यहाँ पर. You have to try it at home. Now this is worksheet for you. Why power saving mode is useful. This is your question.